محمد نبينا بنور هدينا من مكة حبيبي نور سطع. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك كلا بل تكذبون بالدين وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون إن الأبرار لفي نعيم كلا بل تكذبون بالدين وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون كلا بل تكذبون بالدين وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون
وإن الفجار لفي جحيم وإن الفجار لفي جحيم يصلونها يوم الدين وما هم عنها بغائبين وما أدراك ما يوم الدين ثم ما أدراك ما يوم الدين يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ وما أدراك ما يوم الدين ثم ما أدراك ما يوم الدين يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله صدق الله العظيم. माशाअल्लाह, अल्लाह पाक नजर बद से हिफाजत फरमाए और मजीद तरक्यात से मालामाल फरमाए। भाई, शैतान मरदूद के लिए खाली जगह न छोड़े। बहुत सारी जगह बीच में खाली है, शैतान मरदूद के लिए उन जगहों को खाली न छोड़े। हजरत मौलाना का बयान इंशाअल्लाह शुरू होगा। इससे पहले हम अपने दिलो दिमाग को बिल्कुल खाली कर ले दुनियावी ख्यालात से। हजरत मौलाना से उम्मीद है कि नातिया कलाम से इब्तिदा भी फरमाएंगे और इख्तिताम भी फरमाएंगे। जबान और कानों की लज्जत के लिए नातिया कलाम पढ़ा नहीं जाता। अशार के अंदर एक जादू होता है जो अपनी तरफ बंदों को खींचता है। बुरे अशार बुराई की तरफ खींचते हैं और अच्छे अशार नेकी की तरफ बंदे को खींचते हैं अपनी तरफ।
حضرت مولانا سے عاجزانہ درخواست ہے کہ تشریف لے آئیں. وہ جو بینچ پر بیٹھے اگر بشاشت ہو تو اندر آ جاؤ. جابر جب میں لا الہ الا اللہ پڑھوں آپ بھی میرے ساتھ لا الہ الا اللہ پڑھیں گے. حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ نور محمد صلی اللہ پڑھیے لا الہ الا اللہ. حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ نور محمد صلی اللہ لا الہ الا اللہ. تیرے صدقے میں آقا سارے جہاں کو دین ملا بے دینوں نے کلمہ پڑھا لا الہ الا اللہ. تیرے صدقے میں آقا سارے جہاں کو دین ملا بے دینوں نے کلمہ پڑھا لا الہ الا اللہ. گلشن کلمہ پڑھتے ہیں چڑیا کلمہ پڑھتی ہے دنیا کی مخلوق سبھی ذکر خدا کا کرتی ہے. گلشن کلمہ پڑھتے ہیں چڑیا کلمہ پڑھتی ہے دنیا کی مخلوق سبھی ذکر خدا کا کرتی ہے. کہتے سبھی ہے جن و بشر کہتے سبھی ہے جن و بشر کہتا شجر ہے کہتا حجر کہتا ہے پتا پتا لا الہ الا اللہ. حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ نور محمد صلی اللہ پڑھیے لا الہ الا اللہ. میرے نبی کے غلاموں کا رتبہ بڑا ہے شان بڑی چاہے غوث اعظم ہو یا کہ داتا حجویری. میرے نبی کے غلاموں کا رتبہ بڑا ہے شان بڑی چاہے غوث اعظم ہو یا کہ داتا حجویری. یاد نہیں تمہیں وہ منظر یاد نہیں تمہیں وہ منظر خواجہ نے جب خود چل کر 90 لاکھ تو پڑھوایا لا الہ الا اللہ. حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ نور محمد صلی اللہ لا الہ الا اللہ. میرے مولا میرے خدا تو ہی خالق ارض و سما
تو ہی مالک روز جزا، میں ہوں سراپا جرم خطا، میرے مولا میرے خدا، تو ہی خالق ارض و سما، تو ہی مالک روز جزا، میں ہوں سراپا جرم خطا، پھر بھی تجھ سے ہے یہ دعا، وقت نزا جب آئے میرا، لب پہ ہو بس ایک صدا، لا الہ الا اللہ، حسبی ربی جل اللہ، ما فی قلبی غیر اللہ، نور محمد صلی اللہ، لا الہ الا اللہ، دل نہ کسی کا کبھی دکھا، دکھ نہ کسی کو بھی پہنچا، مل جائے گا دل کو سکون، اللہ اللہ کرتا جا، حسبی ربی جل اللہ، ما فی قلبی غیر اللہ، نور محمد صلی اللہ، لا الہ الا اللہ، واحد و یکتا ذات ہے جو ہے خالق رنگ و بو، پروت صحرا یا گلشن، جلوے جس کے ہے ہر کو، واحد و یکتا ذات ہے جو ہے خالق رنگ و بو، پروت صحرا یا گلشن، جلوے جس کے ہے ہر سو، رات کو دن جو کرتا ہے، رات کو دن جو کرتا ہے، رنگلیوں میں برتا ہے، اس نے ہی سب کو پالا، اللہ اللہ کرتا جا، بہت ہی اچھا شعر، پھولوں کی مہکار میں وہ، جنگل میں کوہسار میں وہ، سورج چاند ستاروں میں، مومن کے کردار میں وہ، پھولوں کی مہکار میں وہ، جنگل میں کوہسار میں وہ، سورج چاند ستاروں میں، مومن کے کردار میں وہ، حور ملک یا جن بشر، سب پر ہے مالک کی نظر، ہر دم اس کا ذکر سنا، اللہ اللہ کرتا جا، حسبی ربی جل اللہ، ما فی قلبی غیر اللہ، نور محمد صلی اللہ، لا الہ الا اللہ، تو جگدائے مالک تو، سب خلقت دا خالق تو، ہر ایک دائے رازق تو، سب تعریف دلائق تو جگدائے مالک تو، سب خلقت دا خالق تو، ہر ایک دائے رازق تو، سب تعریف دلائق تو، ہر شے وچ نور تیرا، کر دے دل پر نور میرا، ہر شے وچ نور تیرا، کر دے دل پر نور میرا، دل دی دھڑکن تیز صدا، اللہ اللہ کرتا جا، حسبی ربی جل اللہ، ما فی قلبی غیر اللہ، نور محمد صلی اللہ، لا الہ الا اللہ، مفلس اور نادار ہے جو، ان کی تم امداد کرو، اپنی خوشیوں میں جابر، اپنی خوشیوں میں جابر، بے کس کو بھی یاد کرو، مفلس اور نادار ہے جو، ان کی تم امداد کرو،
اپنی خوشیوں میں رافق بیکس کو بھی یاد کرو، خلق خدا کی خدمت سے، خلق خدا کی خدمت سے خالق راضی ہوتا ہے، احمد یہ پیغام میرا اللہ اللہ کرتا جا، حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ، نور محمد صلی اللہ لا الہ الا اللہ، تیرے صدقے میں آقا سارے جہاں کو دین ملا، بے دینوں نے کلمہ پڑھا جا لا الہ الا اللہ۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نظير له ولا مثال له ولا مثل له ولا معين له ولا مشير له ولا وزير له، ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا وشفيعنا وهادينا ومرشدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله، أرسله بالحق بشيرا ونذيرا، صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وبارك وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون، وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم للصائم فرحتان، فرحة عند فطره، فرحة عند لقاء ربه، صدق الله مولانا العلي العظيم، وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين۔ اخلاص کے ساتھ، محبت کے ساتھ، عقیدت کے ساتھ، اس نیت سے کل قیامت والے خطرناک دین میں، اور خطرناک اس لیے کہہ رہا ہوں، آج سردیوں کے موسم میں دین 12-13 گھنٹے کا
गर्मियों के मौसम में दिन 17-18 घंटे का, कयामत का एक दिन अल्लाह का कुरान कहता है 50,000 साल के बराबर होगा। न औलाद काम आएंगी, न दौलत काम आएंगी। मुसलमानों, मेरी और आपकी बख्शिश कराने के लिए सिर्फ मेरे आका की शफाअत काम आएंगी। एक दफा सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हदिये दुरूद पेश करे। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। तमाम तारीफ और तौसीफ हम्द व सना उस अल्लाह पाक जल्ल शानहू के लिए जो खालिक कायनात भी है और मालिक शख्सियत भी है। अल्लाह ताला की हम्द व सना के बाद हुजूर नबी अकरम शफीए उमम रसूल मुहतशम नबी मुकर्रम रब के प्यारे उम्मत के सहारे रब के महबूब दान रसूल मालिक कादिर उमम फख्र अरब अजम वाली कौन मकान सैयाह ला मकान सैयदीन सोजा सरवर लाला रुखान नय्यर तांबा माह खूबा शहंशाह हसीना कतिन मय दौरा सरखेल जहरा जमाला जलवे सुबह अजल नूरे दात लम यजल बाई से तकवीन आलम फख्र आदम व बनी आदम नय्यर बतहा राज़दार माँ औहा शाहिद माँ तवा साहिब अलम नशरह मासूम आमीना अहमद मुजतबा हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हुजूर नाज में अपनी मोहब्बतों का खिराज पेश करने के बाद इंतहाई वाजिबुल एहतराम बिरादरान इस्लाम उलमाए किराम अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बुजुर्गान मोहतरम, कुरान करीम की एक मुख्तसर सी आयत मदनी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का पाक फरमान आप हजरात के सामने पेश करने की सआदत मिली। रब काबा की बारगाह में दुआ गो हूँ अल्लाह ताला मेरी जुबान पे कलिमतुल हक जारी फरमाए और इस मजलिस को, इस प्रोग्राम को अल्लाह ताला अपनी बारगाह में बेइंतहा कबूल फरमाए। जिन लोगों ने इस प्रोग्राम को मुनाकिद कराया, जिस लाइन से जितना ताउन किया, अल्लाह ताला इन सारे जवानों को, बुजुर्गों को कबूल फरमाए। इनकी काविशों का लम्हा लम्हा अपनी बारगाह में मुस्तजाब फरमाए। इनकी मेहनतों का अल्लाह ताला अपनी तरफ से जज़ाए खैर अता फरमाए। कुरान करीम की जो आयत मैंने आप हजरात के सामने पढ़ी, अल्लाह पाक जल्ले शानहू का फरमान है, या अय्युहल्लदीना आमनू, ए ईमान वालो, कलमा पढ़ने वालों, कुरान पढ़ने वालों, कुतिबा अलैकुमुस सियाम, के तुम पर रोजे फर्ज किए गए, कमा कुतिबा अलल्लदीना मिन क़ब्लिकुम, जैसे तुमसे पहले नबियों की उम्मतियों पर रोजे फर्ज किए गए, लअल्लकुम तत्तकून, ये रोजा इसलिए फर्ज किया गया ताकि तुम्हें तक़वे का नूर हासिल हो। ये सौम जो कुरान में लफ्ज है या अरबी लफ्ज है, और डिक्शनरी में इसका तर्जुमा होता है अल इमसाक, रुक जाना। अस्सौम फिल लुगत अल इमसाक, रोजा लुगत में कहते रुक जाने को। हवाओं के तेज थपेड़े चलते चलते जब रुक जाते तो अहले अरब कहते थे सामती रीह, हवा रुक गई। तेज दौड़ता हुआ घोड़ा अगर रुक जाए तो अरब कहते सामल खैल, मुंह जोर घोड़ा रुक गया। रमजानुल मुबारक के महीने में नफ्स का सरकश और मुंह जोर घोड़ा गुनाहों से रुक जाता है, इसलिए सौम को सौम कहा जाता है। जो लोग बड़ी बेबाकी से डटाई के साथ अल्लाह ताला के हुक्मों की नाफरमानी करते हैं, अरे रमजानुल मुबारक में इन पापियों के सर भी सजदों में देखे जाते हैं। शयातीन को झगड़ लिया जाता है, नफ्स का सरकश और मुंह जोर घोड़ा रोक लिया जाता है गुनाहों से। शरीयत इस्लामिया की इस्तिलाह में रोजा कहा जाता है तुलुए फजरे सानी से गुरूब आफ्ताब तक खाने पीने और जिमा से रुके रहने को। रोजे की तारीख के हवाले से
علامہ اسماعیل حقی نے تفسیر روح البیان میں لکھا ہے ملک تیمورس 48 کے دور میں قحط پڑا. آدم علیہ السلام کی اولاد سے تیسرا بادشاہ گزرا ہے ملک تیمورس. اس نے اپنی قوم کے لوگوں کو حکم کیا کہ ایک وقت کا کھانا کھایا جائے اور ایک وقت کا کھانا بچا کر قحط زدہ علاقوں میں بھیجا جائے. چنانچہ قوم نے ملک تیمورس کے حکم کی تعمیل کی. ایک وقت کا کھانا کھا کر ایک وقت کا بچا کر قحط زدہ علاقوں میں کھانا بھیجا جاتا تھا. اللہ تعالیٰ کو اس قوم کی ادا اتنی پسند آئی, اللہ نے اس ادا کو عبادت بنا دیا قیامت تک کے لیے. تو اس کے بعد ہر نبی پر روزہ فرض کیا گیا. جب رمضان کی فرضیت نازل نہیں ہوئی تھی, اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایام 20 کے روزہ رکھا کرتے تھے. ہر ماہ کی 13ویں 14ویں 15ویں تاریخ قمری تقویم کے حساب سے جو روزے بنتے ہیں انہیں وہ قمری وہ ایام 20 کے روزے کہا جاتا ہے. اس کے بعد عاشورہ کا روزہ آپ کی زندگی کا معمول بنا. کسی بھی صورت میں حضرات صحابہ کرام اور مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم عاشورہ کا روزہ نہیں چھوڑتے تھے. سن ہجری 2 میں واقعہ بدر سے ایک ماہ قبل 17 شعبان المعظم کو رمضان المبارک کے روزے کی فرضیت نازل ہوئی. اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ارشاد ہے, ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا فرمان ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا روزہ رمضان کا فرض ہو چکا ہے, اب جس کی مرضی چاہے عاشورہ کا روزہ رکھے چاہے چھوڑ دے. اس رمضان کے روزے کی فرضیت سے پہلے عاشورہ کا روزہ امت پر فرض تھا. سن ہجری 2 میں روزہ فرض ہوا. سن ہجری 11 میں اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس دار ثانی کو چھوڑ کر دار بقا کی طرف کوچ کر گئے. آپ کی زندگی میں کل 9 رمضان آئے. اس میں سے 2 رمضان 30 کے تھے اور 7 رمضان 29 کے تھے. آج تو 29 کا رمضان ہو جائے تو کہتے ہیں کہ وہ ہلال کمیٹی والے ایک روزہ کھا گئے. اللہ کے نبی کے زمانے میں 9 رمضان آئے, 2 سے لے کر 11 تک, 2 کو بھی شامل کرو. اس میں 2 رمضان 29 کے اور 7 رمضان 29 کے, 2 رمضان 30 کے. اور یاد رکھو مسلمانوں, رمضان چاہے 29 کا ہو چاہے 30 کا ہو, اللہ ثواب 30 کا ہی عطا فرماتا. اللہ راضی فرماتے ہیں کہ اگر کوئی بندہ بھول سے کھا لے بھول سے پی لے, حدیث پاک میں آتا ہے شیطان کھلاتا ہے شیطان پلاتا ہے. ارے رب نے کھلایا رب نے پلایا. بھول سے اگر کھا لے تو روزہ ٹوٹتا ہے, بھول سے پینے سے روزہ نہیں ٹوٹتا. جب بھول سے کھانے پینے سے روزہ ٹوٹتا نہیں, حدیث میں رب نے کھلایا رب نے پلایا, تو چاہے رمضان 29 کا ہو یا 30 کا ہو, اللہ ثواب 30 کا ہی عطا فرماتا ہے. یہ بہت بڑی کرم نوازی اللہ تعالیٰ کی اپنے بندوں پر. اور رمضان کے روزے کی فضیلت کو بیان کرتے ہوئے میرے نبی نے فرمایا اللہ نے ہر چیز کی زکات رکھی ہے, انسان کے جسم کی زکات روزہ ہے. جیسے مال زکات ادا کرنے سے مال پاک ہوتا ہے, روزہ رکھنے سے انسان کا جسم پاک ہو جاتا ہے. یہ نور ہے, دیا ہے, روشنی ہے. یہ روزہ اللہ اور اس کے رب کے درمیان, اللہ اور اس کے بندے کے درمیان ایک راز ہے. ماہ سیام کا مبارک مہینہ یہ اپنے دامن میں رحمتیں اور برکتوں کو لے کر آتا ہے. پہلا اشرا رحمت کا, دوسرا اشرا مغفرت کا, تیسرا اشرا جہنم سے خلاصی کا. پتہ نہیں آج کا مسلمان جوان کون سا پتھر دل لگا کر رمضان میں بھی فلم دیکھ لیتا ہے. پتہ نہیں آج کا مسلمان جوان کون سا پتھر دل لگا کر رمضان میں VCR کے سامنے بیٹھ جاتا ہے. اور مسلمانوں 5 چیزیں اس رمضان کے حوالے سے امت کو ایسی دی گئی ہے اس سے پہلے کسی نبی کی امت کو نہیں دی گئی. سب سے پہلی چیز, روزے دار کے معدے سے جو بدبو نکلتی ہے اللہ تعالیٰ کو وہ بدبو مشک اور کستوری کی خوشبو سے بھی زیادہ محبوب ہے. دوسری چیز جو اس امت کو دی گئی اس سے پہلے کسی نبی کی امت کو نہیں دی گئی, ماہ سیام میں شیاطین کو جھکڑ دیا جاتا ہے.
तीसरी चीज जो इस उम्मत को दी गई, इससे पहले किसी उम्मती को नहीं दी गई, किसी नबी को नहीं दी गई, कि जब तक रोजेदार रोजे की हालत में होता है नूरी फरिश्ते इसके लिए बख्शिश की दुआ मांगते। और चौथी चीज कि आखिरी आशरे में जहन्नम की खलासी का परवाना मिल जाता है, ईद का चांद नजर आता है। अगर किसी मुसलमान ने माह सियाम की कदर की, रोजे रखे, तरावी पढ़ी, गुनाहों से अपने दामन को बचाया, ईद का चांद नजर आता है, ऐसे हो जाता है जैसे अभी माँ के पेट से जन्म लिया हो। और पांचवी चीज जो इस उम्मत को दी गई, इससे पहले किसी नबी की उम्मती को नहीं दी गई, कि जन्नत के लिए जन्नत को आरास्ता पैरास्ता कर दिया जाता है। अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से मरवी है, इमाम बुखारी और इमाम मुस्लिम ने अपनी सही सनद के साथ इसको रिवायत किया है कि कुल्लु अमल इब्नी आदम, अल्लाह का फरमान है, कुल्लु अमल इब्नी आदम लहू, इब्ने आदम का हर अमल इसके लिए है, इल्ला सौम, मगर रोजा, फइन्नहु ली, वो मेरे लिए रखता है, वाना अजज़ी बिही, इसकी जज़ा मैं खुद खुदा दूंगा, इसकी जगह मैं खुद खुदा दूंगा। फिर आगे अल्लाह के नबी ने फरमाया, अगर रोजे की हालत में बदकलामी न करो, रोजे की हालत में गाली गलौज न करो, अगर कोई तुमसे लड़े झगड़े उलझे तो तुम ये कह के माज़रत कर दो, अनस्साइम, मेरा तो रोजा है। फिर अल्लाह के नबी ने फरमाया, वल्लदी नफ्सु मुहम्मदिन बियदिही, उस जात की कसम जिसके कब्जे में मोहम्मद की जान है, रोजेदार की मैदे से जो बदबू निकलती अल्लाह ताला को कस्तूरी की खुशबू से भी ज्यादा महबूब है। फिर आगे फरमाया, लिस्साइमी फरहतान, रोजेदार के लिए दो खुशियां है, फरहतुन इंद फित्रिही, एक खुशी तो वो है जब वो दस्तरखान पर इफ्तार के लिए बैठता है, और दूसरी खुशी की इस रोजे के सिले में कल कयामत के दिन वो अपने रब का दीदार करेगा। दुनिया में अहले ईमान को सबसे पहली जो बड़ी नेमत दी गई है वो दौलत ईमान है, और कयामत के दिन अहले ईमान को सबसे बड़ी दौलत जो दी जाएगी वो रब का दीदार। अल्लाह हम सबको ये दौलत नसीब फरमाए, बोलो जोर से आमीन। इंसान के जितने अमल है वो 7 तरह के होते। 2 अमल ऐसे हैं जो वाजिब करते, 2 अमल ऐसे है जिसकी जजा इसके मिस्ल है, एक अमल ऐसा है जिसकी जजा 10 गुना है, एक अमल ऐसा है जिसकी जजा 700 गुना है, और एक अमल ऐसा है जिसकी जजा बेहिसाब है। कोई बंदा इबादत करता है और इबादत में रब के साथ किसी को शरीक नहीं ठहराया, ये 2 चीजें ऐसी है जो उसके लिए जन्नत को वाजिब कर देती है। हाँ, इसका उल्टा रुख करो, अगर किसी ने रब के साथ किसी को शरीक ठहराया, शरीक न ठहराने पर, शिर्क न करने पर जब अल्लाह जन्नत दे सकता है, तो शिर्क करने पर क्या अल्लाह इसको जहन्नम में नहीं फेंकेगा? एक अमल ऐसा है जिसकी जजा 10 गुना है, वो इंसान का नेक अमल है, चाहे रोजा हो, चाहे तरावी हो, चाहे सदका हो, चाहे खैरात हो, रास्ते से तकलीफ देने वाली चीज को हटाना हो, पड़ोसी के साथ हुस्न सुलूक करना हो, माँ बाप की खिदमत करना हो, बहुत सारी चीजें इसके दायरे में आती है। और एक अमल ऐसा है जिसकी जजा 700 गुना है, दाएं हाथ का दिया हुआ सदका बाएं हाथ को पता न चले। और एक अमल ऐसा है जिसकी जजा बेहिसाब है, वो रमजानुल मुबारक का रोजा है जिसकी जजा अल्लाह बेहिसाब देता है। मुसलमानों, जितनी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फजीलतें बयान फरमाई, वईद भी बयान फरमाई। अल्लाह ताला रमजानुल मुबारक का अदब और एहतराम हम सबको नसीब फरमाए। रमजानुल मुबारक और कुरान के सदक़े में अल्लाह ताला हम सब के पिछले सारे गुनाहों को माफ फरमाए। बहुत बड़ी बात है कि हम अनकरीब इस माह सियाम में दाखिल होने वाले हैं। कितने लोग थे सचिन इस इलाके में, कितने लोग तो पिछले रमजान में यहाँ बैठ कर या तरावी पढ़ते थे, मसाजिद में आते थे, नवाफिल हमारे साथ पढ़ते थे, कुरान की तिलावत करते थे, मनोमन मिट्टी के नीचे चले गए। क्या पता आइंदा साल का रमजान हमारे दामन में है भी कि नहीं। एक साहब आए अल्लाह के नबी के पास, कहा या रसूलल्लाह कोई ऐसी मुख्तसर नसीहत कर दीजिए, मेरी जिंदगी का रुख बदल दे। कहा जाओ, जो भी नमाज पढ़ो आखिरी नमाज समझ कर पढ़ो। मुसलमानों नियत करो, इंशाल्लाह हम ये जो रमजान आ रहे हैं ऐसे गुजारेंगे जैसे हमारी जिंदगी का आखिरी रमजान है। बोलो जोर से इंशाल्लाह। और वही भी सुनाई, मदनी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम एक जुमा के दिन मस्जिद नबवी में जब खुतबा इरशाद फरमाने के लिए मिंबर पर चढ़ने लगे, पहली सीढ़ी पर कदम मुबारक रखा, फरमाया आमीन। दूसरी सीढ़ी पर कदम मुबारक रखा, फरमाया आमीन।
तीसरी सीढ़ी पर कदम मुबारक रखा, फरमाया आमीन। हजरत साहबे किराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहि मजमाइन ने पूछ लिया, या रसूल अल्लाह, आज हमने खिलाफे मामूल 3 दफा आमीन आमीन सुना, इससे पहले तो नहीं सुना। इरशाद फरमाया मदनी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने, ओ लोगो, अभी अभी जुमे के दिन, जुमे के खुतबे के वक्त मस्जिद नबवी में मेरे मिंबर के पास अभी अभी जिब्राइल अमीन तशरीफ लाए और इन्होंने यहाँ खड़े खड़े बद्दुआ दी, या रसूल अल्लाह, हलाक हो जाए, तबाह हो जाए, बर्बाद हो जाए वो आदमी, वो मोमिन बंदा, वो बंदी जिसके पास रमजानुल मुबारक का महीना है फिर भी उसकी बख्शिश न हो। अंदाजा लगाओ, सैयदुल मलाइका की बद्दुआ है, नूरी फरिश्तों के सरदार की बद्दुआ है, बैतुल मामूर में रहने वाले फरिश्तों के सरदार की बद्दुआ है, जमीन और आसमान में रहने वाले फरिश्तों के सरदार की बद्दुआ है, और फिर मस्जिद नबवी में, और फिर हुजूर के मिंबर के पास, और सैयदुल मलाइका की बद्दुआ पर काली कमली वाले की आमीन है। वाकया इसी तरह बर्बाद हो जाए। आज मुसलमान रमजान में झूठ बोलने से गुरेज नहीं करता, गलत कार्यों से नहीं बचता, जुबान को नहीं बचाता, आंख को नहीं बचाता, पेट को हराम लुकमों से नहीं बचाता, हाथ को नहीं बचाता, दिल के अंदर से गलत बातें गुजरती है। अल्लाह का कुरान कहता है, अरे मैं तुम्हारे दिलों के वसवास को भी जानता हूँ, वल्लाहु अलीमुम बिज़ाति सुदूर। अरे मैं तुम्हारे दिलों की बातों को भी जानता हूँ, जो ख्यालात तुम्हारे दिलों में आते, अरे जो वसवास तुम्हारे दिलों में आते, मैं खुदा जानता हूँ। यअलमु खाइनतल आयुन वमा तुख्फी सुदूर। अरे मैं खुदा तुम्हारे आँखों के इशारों को भी देखता हूँ। मेरी जात बड़ी बेनियाज है। पहाड़ की कार में, पहाड़ की कोख में एक छोटी सी चूटी चलती है, मैं खुदा उसके पैरों का खड़का भी सुनता हूँ। दरियाओं की गहराइयों में, समंदरों की गहराइयों में, अंदर ही अंदर तख्त सरा में कोई मेरा नाम लेता है, मैं खुदा उसकी पुकार को भी सुनता हूँ। मेरी जात बड़ी बेनियाज है, मुझे अपने ऊपर कयास न करो। अरे मुसलमानों, अंदाजा लगाओ, नूरी फरिश्तों के सरदार की बद्दुआ है, बैतुल मामूर में रहने वाले फरिश्तों के सरदार की बद्दुआ है, और फिर मस्जिद नबी में, और फिर मेरे नबी के मिंबर के पास, और नूरी फरिश्तों के सरदार की बद्दुआ पर काली कमली वाले की आमीन है। वाकया इसी तरह तबाह बर्बाद हो जाए। मस्जिद ढूंढेंगे ऐसी 20 मिनट में 20 रकात होती है। कहाँ जरूरत है अल्लाह को हमारे सजदों की। अलम कर ढूंढते, बंद कर दो ये अलम कर। लंबे सजदों के लिए फरिश्ते मौजूद है। हमारे सजदों से हमारी आखिरत संवरती है। तो एक आदमी मुझे कहने लगा, मौलाना गर्मी बहुत तेज है, इन गर्मी में रोजा छोड़ दी, इसकी कजा सर्दी में करो तो नहीं चलेगा। माशाअल्लाह। नमाज को नहीं आते, फौरन घड़ी में नजर फौरन घड़ी पर टिक जाती है। 8 मिनट का मामूल है इमाम साहब का, 11 मिनट हो गए तो इमाम साहब का हाल बुरा हो जाता है। और मान लो इमाम ने अगर 11 मिनट का मामूल बना लिया तो दूसरे महीने में इमाम साहब की छुट्टी। हुसैन रज़ी अल्लाह तआला ने करबला के मैदान में तपती हुई रेत से करबला पर तयम्मुम किया, असर की नमाज नहीं छोड़ी। किसी ने कह दिया तो जन्नत के नौजवानों का सरदार है, नमाज छूट भी गई, क्या फर्क पड़ता है? कहा नहीं, कल कोई सकीन वाला ये ना कहे कि हुसैन नवासे रसूल ने करबला के मैदान में असर की नमाज छोड़ दी थी। 5 नमाजें नहीं है। और रमजान मुबारक का महीना देखो ना, कैसी मस्जिद ढूंढते जाओ, बहुत खास तरावी हो जाती है। कितने तो आते ही नहीं है, बड़ी बेबाकी से बच्चों अक्सर खड़े खड़े सिगारेट पीते, नमाज रोजा छोड़ दिया, नमाज तरावी नहीं पढ़ते। अभी लंबी जिंदगी है, बूढ़े हो जाएंगे तब मैं होऊंगा मस्जिद का कोना होऊंगा, सब सारी तौबा कर लूंगा इकट्ठी।
मदनी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का फरमान है, हदीस कुदसी अल्लाह रब्बुल इज्जत का फरमान है, वो मेरे बंदे मेरे सामने रुकू कर, सजदा कर, अत्तहियात में बैठ के मुझसे मुनाजात कर। तेरी मेरी मुलाकात का एक ही जरिया है, एक ही उसूल है, एक ही ज़ाब्ता है, डर मेरा हो सर तेरा हो। इरशाद फरमाया मदनी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने, जब कोई बंदा नमाज के लिए खड़ा होता है, अल्हम्दुलिल्लाह सुब्हानकल्लाहुम्मा पढ़ता है, आवाज आती है, मेरे बंदे ने मेरी तारीफ बयान की, मेरे बंदे ने मेरी बुजुर्गी बयान की। जब सूरतुल फातिहा शुरू करता है, आवाज आती है, हमीदनी आबदी मज्जदनी आबदी, मेरा बंदा मेरी तारीफ कर रहा है, मेरा बंदा मेरी बुजुर्गी बयान कर रहा है। जब सलाम फेर के जाने लगता है, इधर दरियाए करम जोश में आता है, अल्लाह नूरी फरिश्तों से कहता है, तुम गवाह हो जाओ, मैंने मेरे पिछले सारे बंदे के गुनाह माफ कर दिए। और जो लोग दुनिया में नमाज नहीं पढ़ते, अल्लाह का कुरान कहता है, जिसका शरीफ की रिवायत है, कल कयामत का दिन होगा, अल्लाह पाक जल्ले जानू की तरफ से आवाज आएंगी, सारी मखलूक मेरे सामने सजदा करे। कुरान करीम के 29वें पारे में मौजूद है, यौमा युक्शफु अन साक़िन व युदअऊना इला सुजूद। अल्लाह पाक अपनी पिंडली मुबारक का नूर दिखाएंगे, और नूर देखने वालों मेरे सामने सजदा करो। फला यस्ततीऊना खाशिअतन अबसारुहुम तरहकुहुम दिल्लाह। अरे कुछ लोग ऐसे होंगे जो दुनिया में तरावी नहीं पढ़ते होंगे, नमाज नहीं पढ़ते होंगे, अरे रोजा छोड़ते होंगे, अल्लाह के सामने सजदा नहीं किया होगा, वो कल जब झुकने जाएंगे, निस्का शरीफ की रिवायत है, इनकी कमर में लोहा ठोक दिया जाएगा, नहीं झुक पाएंगे। पता चल जाएगा ये रब का 5 वक्त का बाद। यहाँ तरावी चल रही थी, वहाँ फिल्म देखता था, यहाँ तरावी चल रही, वहाँ बेंच पर बैठकर लंगी फेसबुक पर अजनबी लड़कियों से बातें करता। यहाँ छुप सकते हो, वहाँ नहीं, वहाँ की घड़ियां बड़ी खतरनाक है। इमामुल अंबिया की आमीन, काली का इमामुल अंबिया की आमीन, नूरी फरिश्तों के सरदार की बद्दुआ मस्जिद नबवी में और हुजूर के मिंबर के पास। मुसलमानों सीने पे हाथ रख के बताओ, सैयदुल मलाइका की बद्दुआ हो और इमामुल अंबिया की, उस सारे नबियों की इमाम की उस पर आमीन हो, उस बद्दुआ के कबूल होने में कोई शुबा हो सकता है? रात यूं हसलों में बर्बाद कर देते हैं, दिन यूं ही सोने में बर्बाद कर देते हैं। कुलू वतमत्तहू कलीला इन्नकुम मुजरिमून। खा लो पी लो मजे उड़ा लो, सौदा चंद दिनों का हो, तुम परले दर्जे के मुजरिम। कुरान कहता है जब मैं पकड़ूंगा तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। सारी दुनिया को बुलाओ, कोई तुम्हें नहीं छुड़ा सकता। इन बत्श रब्बिक लशदीद, मेरी पकड़ बड़ी सख्त है। एक आमीन हुई, दूसरी सीढ़ी पर कदम मुबारक रखा। साहबाए किराम ने पूछा, या रसूल अल्लाह, आज हमने खिलाफे मामूल आमीन सुना। इमामुल अंबिया महबूब किबरिया हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हो मेरे दीवानो, अभी अभी जुमा के दिन, जुमा के खुतबे के वक्त मेरी मस्जिद में मेरे मिंबर के पास नूरी फरिश्तों के सरदार जिब्राइल अमीन ने बद्दुआ दी, या रसूल अल्लाह, हलाक हो जाए, तबाह हो जाए, बर्बाद हो जाए वो आदमी जिसके पास उसके बूढ़े माँ बाप जिंदा हो, वो खिदमत करके जन्नत में न जाए। ये मर्ज इतना आम हो गया, जवानों के दिलों में माँ की बाप की कोई अजमत नहीं, कोई इज्जत नहीं। रात को आएगा ना आइसक्रीम का वो डिब्बा लेकर आएगा छुपा छुपा के, अम्मी ने पूछ लिया, मेरे बेटा क्या लाएगा? वो मेरी घरवाली की दवाई है। इस बेचारी ने लुक में तोड़ तोड़ के तेरे मुंह में दिए, अपने मुंह से निकाल कर तेरे मुंह में दिए, तो हाथ में नहीं दे सकता। शादी के दो महीने 3 महीने 4 महीने हुए नहीं, बद कलामी, जुबान दराजी, माँ बाप की बेइज्जती, तौहीन, सारा शुरू हो जाता है। आग लगी हुई है घर घर में। यही सूरत से मेरे पर एक आदमी का फोन आया था, कहा मौलाना मेरे बेटे का नंबर है, आप जरा फोन करके इसे समझाए। मैंने कहा क्या हुआ? कहा वो एक खेत था, मैंने इसके नाम कर दिया, इसने मुझे घर से ही निकाल दिया, तेरी कोई जरूरत नहीं। इस जमीन में जाती फैसले की ताकत होती है, माँ बाप के गुस्सा कभी के धस गए होते।
اور اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے عملی طور پر ظاہر کر کے بتلایا. مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف فرمائے, ایک برقع پوش عورت آتی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی سر کی چادر اتار کے زمین پہ بچھائی, اس مائی کو اس کے اوپر بٹھایا, کافی دیر تک گفتگو فرمانے لگے, کھجوروں کا میٹھا پانی تیار کر کے پلایا. جب وہ مائی جانے لگی دور تک چھوڑنے کے لیے تشریف لے گئے. جب بعد میں تشریف لائے صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ یہ کون خوش نصیب مائی تھی؟ فرمایا تم نہیں جانتے, یہ مجھے دودھ پلانے والی میری اماں حلیمہ تھی. ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جو اپنی بوڑھی ماں کو دیکھ کے خوش ہوا, میں اس کے پیٹ سے پیدا ہوا, ارے میں نے اس کے پیٹ سے جنا, میں 2 سال تک اس نے مجھے پیٹ میں دودھ پلایا, 9 مہینے تک 9 ماہ تک اس نے مجھے اپنے پیٹ میں رکھا, آج بھی تہجد میں اٹھ کے میرے لیے دعائیں مانگتی ہے. سرکار فرماتے تو بوڑھی ماں کی نظر ایک چہرے پہ ڈال دے, تیرے نامہ اعمال میں ایک حج کا ثواب لکھ دیا جاتا ہے. ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جو اپنے بزرگ بوڑھے باپ کو دیکھ کے خوش ہوا, میں اس کے نطفے سے پیدا ہوا, اس کی کمائی کھا کر کے میں جوان ہوا, اس نے مجھے کاروبار سیٹ کر کے دیے, میرا شادی کا انتظام کرایا. سرکار فرماتے تو صرف اتنا کام کر لے, ایک نظر باپ کے چہرے پر خوشی سے ڈال دے, تیرے نامہ اعمال میں ایک مقبول عمرے کا ثواب لکھ دیا جاتا ہے. سلمانوں, اور 4 عمل ایسے علماء کرام نے لکھا ہے کہ ماں باپ کے انتقال کے بعد یہ اولاد کے ذمے باقی رہتے. سب سے پہلا حق نماز جنازہ. کتنے جوان ایسے جو نہ نماز جنازہ کی دعا کی ہے نہ نماز جنازہ کے طریقے آتے, وہ ایسے ہی محض رسم اور دکھاوے کے طور پر پیچھے آ کے کھڑے ہو جاتے. پھر جب ان کے ماں باپ فوت ہو جاتے ہیں نا, راتوں رات دعا یاد تو نہیں ہو جاتی, یہ زیادتی وہ اپنے ماں باپ کے ساتھ کرتے. باپ کی ماں کی میت پڑی ہوئی ہے, جوان بیٹا ہے, جنازے کی دعا نہیں آتی. کتنی محرومی اور بدقسمتی کی بات ہے. یہ تو ماں باپ کا پہلا حق ہے انتقال کے بعد اولاد کے ذمے. اس لیے حکم ہے کہ جو بیٹا ہے وہ نماز پڑھائے. اگر وہ بیٹا اس پوزیشن میں نہیں ہے یا ہے کہ نماز جنازہ کی دعا آتی ہی نہیں, کتنی محرومی اور بدقسمتی کی بات ہے. PhD کی, MBBS ڈاکٹر بنا, دنیا کا بہت بڑا انجینئر بنا, باپ اور ماں کی میت پڑی ہے, جنازے کی دعا نہیں آتی. دوسرا حق بر الاصدقاء, باپ کے دوستوں کے ساتھ, باپ کے بھائیوں کے ساتھ, ماں کی سہیلیوں کے ساتھ, ماں کی بہنوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا. ایک صحابی آئے, کہا یا رسول اللہ میری ماں فوت ہو گئی, جب وہ زندہ تھی میں حسن سلوک نہیں کر سکا, کیا میرے لیے کوئی کفارہ ہے؟ ہاں خالہ زندہ ہے, کہا ہاں زندہ ہے. کہا جاؤ اس کے ساتھ حسن سلوک کر, امید ہے اللہ تجھے تیری ماں کی رضا نصیب فرمائے. تیسرا حق دعا استغفار. ماں دنیا سے رخصت ہو گئی, باپ دنیا سے رخصت ہو گیا, 3 کے لیے اب ہاتھ اٹھا کر دعا مانگے. 3 عمل ایسے ہیں, میت کو قبر میں رکھا جاتا ہے, سارے اعمال کا سلسلہ منقطع ہو جاتا ہے, لیکن 3 عمل ایسے جس کے ثواب کا سلسلہ جاری رہتا ہے. ایک صدقہ جاریہ, مسجد میں پھنڈ دیا, مدرسے میں پھنڈ دیا, کسی یتیم کو حافظ اور عالم بنانے کا سارا انتظام کیا, جب تک چراغ کے چراغ جلتے رہیں گے تمہارے نامہ اعمال میں ثواب لکھا جاتا رہے گا. دوسرا علم نافع, اور تیسرا ولد صالح یدعو له, اولاد صالح جو ماں باپ کے انتقال کے بعد ماں باپ کے حق میں دعا کرتی. حدیث پاک میں آتا ہے وہ بیٹا ہر جمعۃ المبارک کو باپ کی اور ماں کی قبر پہ جا کے سورہ یاسین پڑھتا, اللہ اس کی اور اس کے والدین کی مغفرت فرما دیتا ہے. اور چوتھا حق انجاز الوعد, باپ نے اگر کسی سے کوئی وعدہ کیا تھا, باپ پورا نہ کر سکا, لقمہ اجل ہو گیا, تو بیٹے کے اوپر یہ ذمہ داری ہے, ضروری ہے کہ وہ باپ کے کیے ہوئے وعدے کو پورا کرے. کسی فقیر کو دینے کا باپ کا معمول تھا, باپ کے چلے جانے کے بعد وہی فقیر اگر دہلیز پر آ جائے تو خالی ہاتھ نہ جائے, اسی طرح خیر لے کر کے جائے تاکہ ماں باپ کی قبر میں روح آسودہ ہو. یہ 4 حق ایسے ہیں جو ماں باپ کے انتقال کے بعد بھی اولاد کے ذمہ باقی رہتے ہیں. جب ماں باپ زندہ ہے بے شمار حق ہے. بیٹے کہا جاتے آج کل ماں کو باپ کو پتہ ہی نہیں ہوتا. اویس قرنی رحمت اللہ علیہ کی کہانی ہمارے سامنے ہے.
यमन से आए मदीना मुनव्वरा कि चलो आका का दीदार करूं, सहाबी बन जाऊंगा। इत्तेफाक से हुजूर मदीने में नहीं थे, सफर में गए हुए थे। सहाबाए किराम ने फरमाया, उवैस अभी 2-3 रोज में सरकार तशरीफ ले आएंगे, ठहर जाइए, दीदार कर लेना, सहाबी बन जाओगे। कहा मैं नहीं ठहर सकता, मेरी बड़ी मजबूरी है। तो किसी साहबी ने कह दिया तुम्हारी जिंदगी का क्या पता, काली कमली वालों की जिंदगी का क्या पता, ठहर जाइए, दीदार कर लेना, साहबी बन जाओगे। कहा मजबूरी है। कहा क्या मजबूरी? कहा वहाँ यमन में घर में मेरी माँ बूढ़ी बीमार है, पानी पिलाने वाला, वुजू कराने वाला कोई नहीं। अगर मैं यहाँ ठहर गया तो मेरी माँ को पानी कौन पिलाएगा? ये उधर करके चले गए। 2-3 रोज के बाद मदीना मुनव्वरा में सरकार तशरीफ लाए तो साहबा ने कहा ओवैस करने आए थे और ये उधर करके चले गए, आपने ये नहीं फरमाया, बड़ा बदकिस्मत आदमी निकला। आपने फारूक आजम का हाथ पकड़ा था, फारूक अगर तेरी ओवैस करने से कहीं मुलाकात हो जाए ना, मेरी उम्मत की बख्शिश की दुआ कराना, मेरा सलाम पेश करना। बाद में शेरे खुदा अली मुर्तजा रदी अल्लाह ताला अन्हु और फारूक आजम रदी अल्लाह ताला अन्हु दोनों हजरात की ओवैस करने से मुलाकात हुई। कहा आका ने आपको सलाम पेश किया है। तो ओवैस करने की आंखों में आंसू आ गए और कहा बताओ मेरे आका के लबों पर मेरा नाम कैसे आया था? जब ये मोहब्बतों का ठाठा मारता हुआ समुंदर और ये जज्बात देखे तो दोनों हजरात पूछने लगे जब इतना इश्क था तो फिर आए क्यों नहीं? लोग कहाँ कहाँ से आ गए, सलमान फारस से आ गए, सुहेब रूम से आ गए, बिलाल हबश से आ गए और यमन तो इतना दूर नहीं था, तो फिर मदीना क्यों नहीं आए? तो कहा तुम दोनों ने हुजूर को देखा है? कहा हम तो 24 घंटे वहाँ पड़े रहते। कहा एक सवाल करो, मैंने तो नहीं देखा। कहा करो। कहा ये हुजूर के जो ऊपर के अबरू के बाल थे वो जुड़े हुए थे या खुले हुए थे? ये दोनों हजरत एक दूसरे का चेहरा दिखने लगे तो वो इस करनी फरमाने लगे परेशान न हो, तुमने तो देखा है, मैंने तो नहीं देखा, चलो मैं ही बता देता हूँ। जब कोई दूर से देखता तो जुड़े हुए नजर आते, करीब आके देखता तो खुले हुए नजर आते। मालूम हुआ जो माँ की बाप की खिदमत में रहता वो सरकार से दूर होने के बावजूद भी करीब है। पिछले जमाने में एक लड़का था, बदतमीज हो गया, बिगड़ गया। अम्मा ने समझाया बेटा शरीफ खानदान के लोग हैं हम, ऐसी घटिया हरकत नहीं किया करते। वो एक लड़की के पीछे लग गया था। काम के शरीफ खानदान के लोग हैं, हमारे बाप दादा का एक स्टेटस है, वकार है, इज्जत है, तो इज्जत मिट्टी में मिल जाएंगी। शरीफ खानदान के लोग ऐसी निकम्मी हरकत नहीं किया करते। और इस लड़के की वालिदा ने उस लड़की को भी डांट दिया कि तू हमारे घर क्यों आती है? लड़कियों की आदत होती है छोटी छोटी बात पर मुंह बनाने की, तो उसने मुंह बनाया। तो वो लड़का कहने लगा कि तू ऐसा मुंह चढ़ाए हुए क्यों बैठी हुई कि तेरी माँ ने मुझे डांट दिया, जब तक तू तेरी माँ का कलेजा निकाल के न लाए वहाँ तक मैं राजी नहीं होंगी। इश्क के नशे में चूर, मोहब्बत के नशे में मस्त, खंजर लेके गया, सोई हुई माँ की छाती पे हमला कर दिया, खंजर घोंप दिया, कलेजा निकाला, प्लेट में रखा, दौड़ता दौड़ता गया, जाऊंगा महबूबा के सामने पेश करूंगा। ठोकर लगी, कलेजे से आवाज आई बेटा चोट तो नहीं लगी? कलेजे से आवाज आई बेटा चोट तो नहीं लगी? और इस रिश्ते की कमी का एहसास मेरे नबी ने फरमाया। 57 साल की उम्र है, हुजरे आयशा से निकले, ताहद पे नजर सहाबा खड़े हो गए। आपने पीछे अबवा की तरफ देखा, वहीं अबवा मकाम पर नजर जाके रोकी। आपने फरमाया काश मेरी माँ जिंदा होती, मैं मुसल्ले पे खड़ा होता, व अना उसल्ली सलातल ईशा, और मैं ईशा की नमाज शुरू कर चुका होता। मेरी माँ को मेरे साथ कोई काम याद आ जाता, वो मेरे घर की दहलीज पर आती, किलमन सिरकाती, मीठे मत भरे लहजे में कहती बेटा मोहम्मद, मैं माँ के खातिर नमाज तोड़ देता। बोलो अम्मा जी मैं नमाज बाद में पढ़ूंगा। क्या तालीम है, कितना खूबसूरत दीन है, कितनी निराली तालीम है। एक साहबी है कहा यार रसूलल्लाह मेरी माँ फौत हो गई, क्या मेरे लिए कोई हुस्न सुलूक करने का कोई जरिया है? कहा जा कोई ऐसा काम कर दे जिससे मखलूक फायदा उठाए, अल्लाह तेरी माँ की कब्र में इसका फैज पहुँचाएगा।
इमामुल अंबिया महबूब किबरिया हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दूसरी सीढ़ी पर कदम मुबारक रखा, फरमाया आमीन। साहबा किराम के पूछने पर अल्लाह के नबी ने फरमाया, अभी अभी मस्जिद नबी में मेरे मिंबर के पास जिब्राइल अमीन तशरीफ लाए, इन्होंने यहाँ खड़े खड़े बद्दुआ दी, हलाक हो जाए, तबाह हो जाए, बर्बाद हो जाए वो आदमी जिसके बूढ़े माँ बाप जिंदा वो खिदमत करके जन्नत में न जाए। कितनी आमीन हुई? कितनी हुई? 2। इमामुल अंबिया महबूब किबरिया हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तीसरी सीढ़ी पर कदम मुबारक रखा, फरमाया आमीन। फरमाने लगे, अभी अभी मस्जिद नबवी में मेरे मिंबर के पास नूरी फरिश्तों के सरदार जिब्राइल अमीन ने आकर के बद्दुआ दी, हलाक हो जाए, तबाह हो जाए, बर्बाद हो जाए वो आदमी जिसके सामने आपका नाम नामी इसने गिरामी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लिया जाए और वो आपकी जात से दुरूद न पड़े। अल्लाह ने कुरान में कहीं ये नहीं कहा मैं नमाज पढ़ता हूँ तुम भी नमाज पढ़ो। अल्लाह ने पूरे कुरान में कहीं भी ये नहीं कहा मैं भी कुरान पढ़ता हूँ तुम भी कुरान पढ़ो। अल्लाह ने पूरे कुरान में कभी यही नहीं कहा कि मैं हज को जाता हूँ तुम भी हज को जाओ। अल्लाह ने पूरे कुरान में कहीं ये भी नहीं फरमाया मैं भी रोजा रखता हूँ तुम भी रोजे रखो, लेकिन हाँ ये जरूर फरमाया कि मैं भी दुरूद भेजता हूँ तुम भी दुरूद भेजो। कौन सी आयत? इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। कुछ काम ऐसे है जो सिर्फ खालिक करता है, मखलूक नहीं कर सकती। पैदा करना, रिस्क पहुंचाना, ये ऐसे काम है जो सिर्फ खुदा कर सकता है, बंदे नहीं कर सकते। कुछ काम ऐसे है जो सिर्फ बंदे करते, रब की शान के लायक नहीं। हमें सजदे का हुक्म दिया गया, अल्लाह सजदे से पाक है, इससे को तो पहले ही से मस्जिद है। हमें रोजे का हुक्म दिया गया, अल्लाह पाक है। हमें ज़कात का हुक्म दिया गया, अल्लाह पाक है। कुछ काम ऐसे है बंदे करते हैं, खालिक नहीं करता। कुछ काम ऐसे खालिक करता है, मखलूक नहीं करती। लेकिन एक काम ऐसा है जिस इबादत में अल्लाह हमारे साथ शामिल है, वो कौन सा काम? इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। मैं खुदा और नूरी फरिश्ते महबूब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात पे दुरूद भेजते हैं। वो कलमा पढ़ने वाले मुसलमानों तुम भी अजीमुल मर्तबत नबी की जात पे दुरूद भेजे। अबू अब्दुल्ला मोहम्मद सुलेमान जज़ूली सन हिजरी 708 में पैदा हुए बहुत बड़े पाए के बुजुर्ग थे। किसी बस्ती के पास से गुजर रहे थे, असर का वक्त हुआ, पानी था नहीं, बहुत परेशान थे। चलते चलते एक बस्ती आई, कुएं पर नजर पड़ी, ठंडा सांस लिया कि चलो पानी मिल गया। फिर वहाँ करीब गए तो और ज्यादा परेशान हुए, पानी है लेकिन काफी गहरा है, न डोल है न रस्सी है, पानी निकालू तो कैसे निकालू। इसी परेशानी के आलम में खड़े थे। वहाँ गली में चंद बच्चे खेल रहे थे। नन्ही से 8 साल की मासूम बच्ची आई और कहने लगी, बूढ़े मियाँ बड़े परेशान नजर आ रहे हो। कहा, बेटी पानी निकालना है, वुजू बनाना है, असर का वक्त निकला जा रहा है, न डोल है न रस्सी। कहा, इस पानी को निकालने के लिए डोल रस्सी की क्या जरूरत? कहा, फिर कैसे निकलेगा? वो लड़की 8 साल की मासूम बच्ची पानी के अंदर, कुएं के अंदर झांका और एक थोड़ा सा लुहाद अंदर डाला, पानी उछल के किनारों पे आ गया। वुजू बनाया, असर की नमाज पढ़ी, फिर बच्ची को अपने पास बोला। कहा, बेटी तेरा ऐसा कौन सा खास अमल है, तूने थूका पानी किनारों पे उछल के आ गया? कहा, मेरी माँ मुझे रात को उस वक्त तक सोने नहीं देती जब तक मैं 1000 दफा काली कमली वाले की जात पे दुरूद न पढ़ूं। तुम्हारे बच्चे वही गेम खेलते खेलते सो जाते हो। सभी का ये हाल है, किसी मजहब वाला महफूज नहीं है। और याद रखो, पर्दे की आड़ में सुनने वाली मेरी माएं और बहनें, बाप अगर तरबियत करना चाहे, माँ ना चाहे, बच्चे की तरबियत कभी नहीं हो सकती। 80% रोल माँ का है। जितने कुतुब खाने भरे पड़े हैं, जितने बड़े बड़े अकाबिर गुजरे हैं, 80% रोल इनकी माँ का है। 22,000 लश्करे जर्रार के सामने मैदान करबला में अगर हुसैन इब्ने अली डटा हुआ है तो ये बेशक फातिमा बिनते मोहम्मद की दूध की तासीर है। माई अगर उम्मुल खैर है तो बेटा गौसे आजम से अब्दुल कादिर जिलानी बनता है। माई अगर रास्ती है तो बेटा बाबा फरीदुद्दीन गंजशकर बनता है। फारूक आजम रजी अल्लाह तआला अन्हु एक इलाके से, मदीना मुनव्वरा का दौर है, जब आपके खिलाफत का जमाना आया, एक गली के पास से गुजर रहे थे। वहाँ अंदर घर में एक माँ अपनी बेटी को तालीम दे रही कि बेटा पानी में दूध मिला ले।
तो बेटी कहने लगी अमीरुल मोमिनीन का हुक्म है, पानी दूध में पानी नहीं मिलाना है। कहा अमीरुल मोमिनीन कभी दरबार में होंगे, वो कहाँ देख रहे? कहा अमीरुल मोमिनीन नहीं देख रहे, अमीरुल मोमिनीन का अल्लाह तो देख रहा है। ये अदा इतनी पसंद आई, फारूक आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने उस लड़की के साथ अपने बेटे आसिम का निकाह कराया। फिर उस लड़की के पेट से एक और बेटी ने जन्म लिया और उस लड़की के पेट से एक लड़का वजूद में आया, दुनिया में आया, जिसको दुनिया उमर इब्न अब्दुल अजीज के नाम से जानती है। माए अच्छी है, दीनदार है, तो ये दीन औलाद में मुंतकिल होता है। अगर माए दीन बेजार है तो औलाद में कभी दीन नहीं आ सकता। इसमें निस्का शरीफ की रिवायत है, तुनकाहुल मरअतु लिअरबईन, 4 चीजों की वजह से निकाह किया जाता है। नंबर 1 लिमालिहा, माल की वजह से। नंबर 2 लिजमालिहा, खूबसूरती की वजह से। नंबर 3 लिहसबिहा, हसब नसब खानदान की वजह से। और नंबर 4 लिदीनिहा, दीनदारी की वजह से। अल्लाह के नबी ने फरमाया 3 चीजों को पीछे रखो, दीनदारी को आगे रखो। अगर माँ में दीन है बच्चों में दीन आएगा, अगर माँ में दीन नहीं है तो बच्चों में कभी दीन नहीं आ सकता। वो भी तो माँ थी, बच्चे को दूल्हे की तरह सजाकर मैदान में भेजती थी। उम्मे अम्मारा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा, बेटे का नाम है हबीब इब्ने ज़ैद, बहुत गोरे चट्टे खूबसूरत सहाबी है। मुसैलमा कज़्ज़ाब, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के बाद जिसने झूठा नबूवत का दावा किया था, मेरे पास वही आती है। सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के दौरे खिलाफत में जंगे यमामा हुई, खालिद इब्ने वलीद की सरकर्दगी में इस जालिम का खात्मा हुआ था। मुसैलमा कज़्ज़ाब के जमाने में उम्मे अम्मारा के बेटे हबीब इब्ने ज़ैद को मुसैलमा कज़्ज़ाब के सिपाही पकड़ के ले आए। मैं बताऊं जमाने की माएँ कैसी थी। मुसैलमा कज़्ज़ाब ने हबीब बिन ज़ैद से कहा, एक दफा कह दे कि मैं अल्लाह का रसूल तुझे छोड़ दूंगा। कहा जिस जुबान से मोहम्मद को रसूल कहा है उस जुबान से तुझे रसूल नहीं कह सकता। फौरन वार किया, एक हाथ काट दिया। कभी भी मौका एक दफा कह दे मैं अल्लाह का रसूल तुझे छोड़ दूंगा। कहा मोमिन की एक ही जुबान होती है, जिस जुबान से मैंने कहा है मोहम्मद रसूलुल्लाह, उस जुबान से मैं तुझे रसूल नहीं कह सकता। फौरन वार किया, दूसरा हाथ काट दिया। अभी भी मौका है कह दे, कहा नहीं कह सकता, मोमिन की एक ही जुबान होती है, एक पाँव काट दिया, फिर दूसरा पाँव काट दिया, आंखों में नेज़े चुभाए, मुसला किया गया, उंगलियां काट के हार बनाया गया और नाक और कान को नोच लिया गया। बकरी की खाल की तरह चमड़ी उधेड़ी गई, धूप में रखा गया। तड़प तड़प के हबीब बिन ज़ैद लुकमे अजल हो गए, शहीद हो गए। एक काफिला मगरिब के बाद उम्मे अम्मारा के पास गया, कहा तेरे बेटे को मुसैलमा कज़्ज़ाब के सिपाहियों ने बेदर्दी से शहीद कर दिया। तेरे एक हाथ काटा, फिर दूसरा हाथ, फिर एक पाँव, फिर दूसरा पाँव, आंखों में नेज़े चुभे, मुसला किया गया, हाथ और पाँव काटे गए, आंखों में नेज़े चुभे, बकरी की खाल की तरह चमड़ी उधेड़ी, धूप में रखा गया। तड़प तड़प के तेरा बेटा शहीद हो गया। पर्दे की आड़ में सुनने वाली मेरी माए बहने, जरा दिल की आंखें खोलो, अपने जमीर को टटोलो, झंझोड़ो, बेदार करो। वो भी तो माई थी, उसका भी जमीर था, उसका भी तो दिल था। उसने हाथ उठाए, कहा लोगो पसीना नहीं आया, धड़म से जमीन पर नहीं गिरी। कालिहादल यौमी अरजातुहु, यही दिन देखने के लिए मैंने मेरे बेटे को दूध पिलाया था। यही दिन देखने के लिए मैंने मेरे बेटे को दूध पिलाया था। आज देखो क्या हाल है। मासूम 8-8 साल के बच्चे, 8-8 साल की बच्चियां फिल्म दिखा दिखा कर बदमाश बना दिया। बड़े फखर से बाप कहता है मेरा बेटा तो सब इंस्टॉल कर लेता है। इनके हाथों से मोबाइल छीन लो, फिल्म की सीढ़ियाँ छीन लो। ये बच्चे कच्चे कान वाले हैं, बचपन की लोरी बच्चा मौत तक नहीं भूलता है। अभी इस कान में जो चीज जाती है वो मौत तक जम जाती है। इनके कानों को दुरूद चाशना कराओ, मेरे नबी की सीरत पढ़ाओ, फातिमतुज़ ज़हरा की सीरत पढ़ाओ छोटी छोटी मासूम बच्चियों को। अगर तुम्हारे पास की फुर्सत, इतना बड़ा टीवी ला, हिंदू घराने के ड्रामे देख देख कर सारे घरों को आग लगा दी। नियत करे, बहुत अच्छा महीना आ रहा है, सारे पिछले सारे गुनाहों की इंशाअल्लाह बख्शिश कराएंगे। अल्लाह ताला से ऐसे अमल करेंगे यार, ये ऐसा माह सियाम है कि रब की रहमत छम छम बारिश की तरह उतरती है। कुरान पढ़ेंगे, नियत करो, एक नमाज मिस नहीं होने देंगे, एक नमाज नहीं छूटने देंगे। सारी नमाज तकबीर उला के साथ इंशाअल्लाह मस्जिद में, सारी तरह इंशाअल्लाह मस्जिद में खड़े खड़े पढ़ेंगे।
वो भी तो बच्ची थी, वो इसकी तो माँ थी। कहा मेरी माँ 1000 दफा जब तक मैं दुरूद न पढ़ूं वहां तक नहीं सोने देती। मोहम्मद बिन सुलेमान अल जज़ुली ने फिर इरादा किया सारी जिंदगी दुरूद पढ़ने में और लिखने में गुजारूंगा। फिर मशहूर जमाना किताब दलाइलुल खैरात के नाम से तस्नीफ की। उलमाए किराम का लिखना है जो इस किताब को बाकायदगी से पढ़ लेता अल्लाह ख्वाब में नबी का दीदार नसीब करता है। मोहम्मद बिन सुलेमान अल जज़ुली का इंतकाल हुआ, ये बात अखबार मशहूराने से है। दुरूद की बरकत की वजह से इनकी कब्र की मिट्टी से हर वक्त कस्तूरी की खुशबू आया करती थी। उलमाए किराम ने लिखा है कल क़यामत का दिन होगा, एक आदमी का नाम अमल टटेला जाएगा, नेकी वाले पलड़े में कुछ भी नहीं और बदियों वाला पलड़ा लबालब भरा हुआ है। वो रोएगा पछताएगा। तब तक तो कब्र में अजाब भुगतता था, थोड़ी कुछ तवक्कु थी, एक नेकी निकल आएंगी जो मेरे लिए जरिए नजात बनेंगी। यहाँ क्या देखता हूँ, नेकी वाला रजिस्टर बिल्कुल खाली है, बदियों वाला लबालब भरा हुआ है। माँ कहाँ भाग गई, औलाद कहाँ भाग गई, कोई किसी के काम नहीं आता। उलमाए किराम ने लिखा एक हसीन और जमील खूबसूरत चेहरे वाले अपनी सवारी पर सवार होकर आएंगे और अर्ज करेंगे तू क्यों परेशान है। वो आदमी कहेगा मेरा रजिस्टर खुल गया, मेरी फाइल खुल गई। अरे नेकियों वाले पलड़े में कुछ भी नहीं, बदियों वाला रजिस्टर पलड़ा बला बालक भरा हुआ है। वो हसीन और जमील खूबसूरत चेहरे वाले उंगली के तोड़ने के बराबर अपनी जेब से कागज का एक छोटा सा टुकड़ा निकाल करके देंगे और फरमाएंगे जा तेरे नेकी वाले पलड़े में कागज का टुकड़ा रख दे। अंदाजा लगाओ, एक तरफ रजिस्टर बदियों के भरे हुए और दूसरी तरफ नेकी वाले पलड़े में कुछ नहीं। इतने सारे रजिस्टरों के मुकाबले में कागज के छोटे से टुकड़े की क्या हैसियत। खैर वो जाएगा, नेकी वाले पलड़े में वो कागज का छोटा सा टुकड़ा रखेगा, नेकी वाला पलड़ा झुक जाएगा, बदियों वाला पलड़ा रजिस्टर हवा में उड़ेगा। वर्ष करेगा मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान हो, आप कौन हो, कहा तूने मुझे पहचाना नहीं। वो हसीन और जमील खूबसूरत चेहरे वाले कहेंगे मैं तेरा नबी मोहम्मद हूँ, तू मेरा उम्मती है। एक दफा दुनिया में तूने खलास के साथ, मोहब्बत के साथ, अकीदत के साथ मेरी जात से दुरूद पढ़ा था। अल्लाह पाक जल्ले शानू ने वो दुरूद मुझ तक पहुँचाया था, मैंने संभाल के रखा था, आज मैंने तुझे वापस कर दिया। मुसलमानों ऐसे अमाल करके जाओ कि कल कयामत के दिन हमारे लिए ज़खीरा बन जाए, वरना कयामत की घड़ियां बहुत खतरनाक है। वअम्मा मन ऊतिय किताबहु बिशिमाली फयक़ूलु या लैतनी लम ऊत किताबिया। जिसका नाम अमल बाएं हाथ में उल्टे हाथ में दिया जाएगा वो रोएगा, पछताएगा, अफसोस करेगा काश मेरा रजिस्टर न खुलता, काश मेरी फाइल न खुलती। अरे मुसलमानों जरा उन लोगों का भी ख्याल करो, छाती को चीर कर बायां हाथ उसमें से गुजार कर पीछे के रास्ते से अल्लाह नाम अमल पकड़ाएगा। वो अम्मा मन ऊतिय किताबहु वराअ ज़हरी फसौफ यदउ सुबूरा छाती को चीर कर बायां हाथ उसमें से गुजार कर पीछे के रास्ते से नामा अमल पकड़ाया जाएगा। वो रोएगा, पछताएगा, मेरा शुमार पथकारों में हो गया, मेरी फाइल खुल गई, मेरी आखिरत तबाह बर्बाद हो गई। अरे मैंने दुनिया में कुरान न सुना, मैंने तरावी न पढ़ी, अरे मैंने रमजान के रोजे न रखे, अल्लाह का कुरान कभी न सुना, नबी का फरमान कभी न सुना, अल्लाह के हुक्मों को मैंने तोड़ा, कभी अल्लाह के हुक्म पर अमल न किया। आज क्या आलम है। अल्लाह तो मुझे हर वक्त कहता था, रब का कुरान ललकार के कहता था इक़्तरब लिन्नास हिसाबुहुम वहुम फी ग़फ़लतिन मुरिदून। हिसाब का वक्त सर पे आ पहुँचाए, मौत की घंटी बजने वाली है, बेदार हो जाओ। अल्लाह का कुरान कहता है जब मैं बेदार करूँगा तुम्हें कोई मौका न मिलेगा। वअम्मा मन ऊतिय किताबहु बिशिमाली बाएं हाथ में नाम अमल पकड़ाया जाएगा। फयक़ूलु या लैतनी लम ऊत किताबिया। काश मेरी फाइल न खुलती, काश मेरा नाम अमल मुझे न दिया जाता तो आज मेरे लिए अच्छा होता। वलम अदरी मा हिसाबिया, काश आज मेरा हिसाब किताब न होता। वो अपनी दुनियावी जिंदगी याद करके रोएगा। मैं बड़े बड़े बंगलों में रहता था, 28 और 22 में रहता था, बड़ी बड़ी आराम की जिंदगी बसर की। मालिया
मेरा माल मुझे कुछ काम नहीं, और कुछ काम नहीं आता मुसलमान। कफन भी पुराना नहीं होता, ये बेटे बांट लेते, कफन भी पुराना नहीं होता, यहाँ झगड़े शुरू हो जाते हैं, रिश्तेदार हाथ घर के घर भी नहीं हो जाए, बंटवारा हो जाता है। कुछ काम नहीं आता, सिर्फ अपना अमल काम आता है। 2 मीटर का कफन, उसके अलावा कुछ नहीं। वही आएगा जो तुमने पहले आगे भेजा है। 3 चीजें मेरी और आपकी है, 3 चीजें, खाया हजम कर दिया, पहना फाड़ दिया, जो आगे भेजा, बाकी कुछ नहीं। ये सारा वारिसों का है। अब्दुल अजीज साहब मुहद्दिस दहलवी फरमाते, पिछले जमाने में एक आदमी था, उसका बाप बड़ा कंजूस था, वो औलाद को खर्च करने के लिए नहीं देता था। बाप का इंतकाल हुआ तो बेटे के दिल में थोड़ा सा गुस्सा था, तो बेटों ने वो अशरफी और रुपये की जो थैली थी, कहा बाप ने हमें नहीं दिया, अब हम क्या खर्च करें। वो बेटे के दिल में गुस्सा था, तो उसने वो कब्र खोदने वाले से कह दिया कि अशरफी रुपयों की थैली मेरे बाप की कब्र में ही रख दे। तो वो अशरफी रुपयों की थैली बाप की कब्र में रखवा दी। मुसलमानों देखो, कभी कभी इकट्ठा किया हुई कबाल बन जाता है, वो अंदर रख दी कब्र में। 3-4 दिन के बाद उस बेटे के यहाँ तंगी आई, इफलास आया, गुर्बत आई, तो उसके जहन में ये बात आई, बाप ने पूरी जिंदगी में नहीं दिया, बाप के मरने के बाद मैं खर्च कर सकता था, मैं भी को बड़ा अहमद बेवकूफ, मैंने कब्र में रखवा दिया, जमाने में मेरे जितना पागल तो कोई नहीं। उसके जहन में तरकीब आई, रात छा जाएंगी, तारीखी छा जाएंगी, तब जाऊंगा कब्रिस्तान, कब्र खोलूंगा और अशरफी की थैली उठा के ले आऊंगा। कब्रिस्तान गया, कब्र खोली, आज ही आलम है, बाप की कब्र खोलते ही देख लिया, सर के बालों से पैर के नाखून होता है, जिस तरह औरतें अपने 2 पट्टों के ऊपर सितारे लगा दिए, एक एक अशरफी इसी तरह पूरे बदन से चिपकी हुई है। वो बेटा परेशान, एक अशरफी को लेने के लिए 2 उंगलियों का सहारा लिया, एक अशरफी को हाथ लगाया, इतनी आग लगी, हर वक्त दही में, मुंह में, पानी में, दवाई में रखता था, चैन नहीं मिलता था। 8 दिन गुजर गए, किसी ने कहा न रात को चैन आता है, न दिन को सुकून मिलता है। किसी ने कहा शाह अब्दुल अजीज साहब मुहद्दिस दहलवी बहुत बड़े अल्लाह वाले, जा पढ़ के दम करा। तो वो आया शाह साहब के पास और आके गोलमोल बात करने लगा। उसने वो राज नहीं बतलाया, उसने कहा पता नहीं कोई थोड़ा है, कोई फुंसी है, अंदर से कोई चीज निकलती है, इतनी आग लगी है, कोई चैन ही नहीं मिलता। शाह साहब ने एक मरतबा दम किया, फूंक मारा, कहा क्या अभी कुछ इफाका हुआ, कहा नहीं वैसा का वैसा दर्द है। दूसरी मरतबा पढ़ के दम किया, कहा अभी कुछ अच्छा लगा, कहा नहीं वैसा का वैसा दर्द है। तीसरी मरतबा पढ़ के दम किया, कहा अब कुछ इफाका हुआ, कहा नहीं पहले जैसा बिल्कुल वही दर्द है। कहा झूठ बोलता है, न ये फोड़ा है, न ये फुंसी है, न कोई और जख्म है, ये तो जहन्नम की आग का अजाब है। वो बेटा रोने लग गया, कहने लगा मेरा बाप बड़ा बखील था, न ज़कात दिया करता था, न गरीबों पे खर्च किया करता था, न औलाद पे खर्च किया करता था। मेरे दिल में मेरे बाप के बारे में गुस्सा था, तो वो मरा, अशरफियों की थैली मैंने कब्र में झाड़ दी। मेरे पास जब तंगी आई, मैंने कब्र खोली, एक अशरफी को हाथ लगाया, इतनी आग लगी, आज तक चैन नहीं मिला। बताया इसलिए नहीं था, मुझे मेरी बाप की बदनामी का डर लगता था। साहब इलाज मुआलजा कर करके थक गया, आप मुझे इलाज बतला दीजिए। अब्दुल अजीज साहब मुहद्दिस दहलवी फरमाने लगे, जा मस्जिद में जा, 2 रकात नमाज अदा कर, अल्लाह के सामने आंसू बहा। ये ऐसी आग है, दरियाओं का पानी काफी नहीं, समुद्रों का पानी काफी नहीं, नदी नालों का पानी काफी नहीं, चश्मे बारिश का पानी काफी नहीं, ये तो जहन्नम की आग है। जा अल्लाह के सामने आंसू बहा, तेरे आंख से जो आंसू पानी के कतरे पड़ेंगे, उंगलियों पे लगा देना, शायद आग बुझ जाएंगी। ऐसा ही किया, 2 आंसू के कतरे उंगलियों से जलन था वहाँ लगाए, उसको सुकून मिल गया। इससे हदीस पाक में आता है मुसलमानों, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, 2 कतरे ऐसे जो कभी रायगा नहीं जाते। एक मैदान कारजार में शहीद के खून का कतरा जमीन पर गिरने से पहले अल्लाह उसकी बख्शिश कर देता है, और दूसरा मुसलमान बंदा और बंदी की आंख से निकला हुआ आंसू का कतरा जमीन पर पड़ने से पहले अल्लाह इसकी बख्शिश फरमा देता है। ये माह सियाम रमजानुल मुबारक का महीना, ये रोने का महीना है।
तौबा इस्तिग़फ़ार का महीना है। आज तो मुसलमान रब से मांगना ही भूल गया, किसी से कर्ज मांग रहा है, हजारों बातें बस बनाना मुसलमान जानता है। अरे ये मिट्टी के बुत क्या हमारी तमन्नाएं मुरादें पूरी करेंगे, दुनिया वाला दे तो एहसान न दे तो शर्मिंदगी। वो दर खुला हुआ है जहाँ से न मांगो तो मेरा रब नाराज हो जाता है। मस्जिद नबवी के कोने में एक आदमी बैठ के दुआ मांग रहा था और अंदाजे दुआ अल्फाज ये कि अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका बिअन्नका अंतल्लाह ला इलाहा इल्ला अंता अंतल अहद अस्समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। मौला मेरे मैं तुझसे इसलिए मांग रहा हूँ, तेरे अलावा मेरा कोई देने वाला है ही नहीं। अल्फाज ये थे। अल्लाह के नबी ने एक सहाबी को बुलाया, कहा वो जो कोने में बैठ के दुआ मांग रहा है, जाओ जाके बशारत दे दो, अल्लाह ने तेरी दुआ को कबूल फरमा लिया। इस अल्लाह ताला ने मूसा अलैहिस्सलाम से फरमा वईदा सअलत फस्अलिल्लाह, मूसा जब भी मांग अल्लाह से मांग, वईदा इस्तअनत फस्तईन बिल्लाह, जब भी मदद मांग अल्लाह से मदद मांग। दुनिया वाला दे मांगे तो नाराज हो जाता है, वो खुदा न मांगे तो नाराज हो जाता है। ये तौबा का महीना है, रमजानुल मुबारक, कसरत से तौबा करो, इस्तिग़फ़ार करो, अल्लाह के सामने आंसू बहाओ। मोमिन के आंख से गिरा हुआ आंसू का कतरा जमीन पर गिरने से पहले अल्लाह पिछले सारे गुनाहों को आग लगा देता है। हमारे दामन में एक सही सजदा, एक नेकी नहीं है मुसलमानों कि हम रब के सामने पेश कर सके। हम तो गुनाहों में लिथड़े हुए। ये अल्लाह ताला ने बहुत अच्छा मौका फराहम किया है कि अल्लाह के सामने जाएंगे, आंसू बहाएंगे, अपने पिछले गुनाहों की बख्शिश चाहेंगे। ये अल्लाह हम सबको रमजानुल मुबारक रोजे और कुरान के सदके में अल्लाह हम सबको माफ फरमाए। मुसलमानों, तौबा के मुतालिक एक वाक़या सुना तो हसन बसरी, ये बहुत बड़े जमाने की इमाम और मुक्तदा गुजरे हैं। हसन बसरी की तौबा का वाक़या सुनाता हूँ। ये बसरा में सुबह के वक्त बाजार में जाते थे और दुखियों और बेबसों की मदद करते थे। एक दिन सुबह का कसीदा शुरू हुआ, बाजार में गए तो एक लड़की पर नजर पड़ी। वो लड़की बड़ी खूबसूरत थी। हसन बसरी मुसलसल उस लड़की को देखते रहे तो वो लड़की करीब आई, कहा माँ तस्तही, तुम मुझे मुसलसल देख रहे हो, तुम्हें शर्म नहीं आती? कहा कि निम्मन, मैं किससे शर्म करूँ? उस जात से शर्म करो जो आंखों की इशारों और दिलों की इरादों को भी जानती है। हसन बसरी फरमाते हैं बज़ाहिर उसकी बात तो बहुत कवी थी, बहुत वजनी थी, लेकिन उसका चेहरे का हुस्न ऐसा था, उसके बावजूद भी मैं उसकी तरफ मुसलसल देखता रहा। तो मेरे करीब आई, कहा क्या चाहते हो? मेरे जिस्म में ऐसी कौन सी चीज है जो तुम्हें ज्यादा पसंद है? कहा ये तेरी झील जैसी आंखों में डूबना चाहता हूँ जो मेरे लिए बाई से कशिश है। तो कहा ठहरो 2 मिनट, शायद तुम्हारा मकसद पूरा हो जाए। वो घर गई। थोड़ी देर के बाद एक लड़की खादिमा आई और एक प्लेट लेकर आई, उस पर लाल रंग का कपड़ा ढका हुआ हसन बसरी के सामने पेश किया। वो कपड़ा हटाया तो उस प्लेट में उस लड़की की दोनों आंखें थी और वहाँ एक कागज का टुकड़ा था। वो कागज का टुकड़ा हसन बसरी ने उठाया, अंदर लिखा हुआ था, उस लड़की ने लिखा था इन्नी ला उरीदु ऐनन यस्तकिनु बिसबबिहा अहदुन, मैं वो आंखें रखना ही नहीं चाहती जिससे एक मोमिन फितने में पड़ जाए। ऐसी आग लगी, पांव तले जमीन खिसक गई, चारों कतार रोने लगे दाढ़ी पकड़कर। कहा मैं उस लड़की से भी गया गुजरा निकला जिसने मेरी वजह से आंखें कुर्बान कर दी। सारी रात रोते रहे। जब सुबह का सफीदा शुरू हुआ तो उन्होंने कहा चलो सारी रात अल्लाह से तो माफी मांगी, चलो उस लड़की से भी माफी मांग के आता हूँ। जब उस लड़की की गली में पहुंचे तो उसका जनाजा निकल रहा था। क्यों तू करके दिन गुजारा, रात को सोए तो उस लड़की ख्वाब में मिली, वो लड़की ख्वाब में मिली। कहा मुझे कोई नसीहत कर। कहा वही दा खाला फज़कुरिल्लाह, जब भी तन्हाई में जाओ तो अल्लाह को याद करो, जब भी तन्हाई में जाओ तो अल्लाह को याद करो। फिर उस लड़की ने कहा वही दास्तम फस्तगफिरिल्लाह, सुबह शाम गुनाह हो जाए तो फौरन अल्लाह ताला से तौबा और माफी मांग लिया करो। हसन बसरी फरमाती इस लड़की के इस अमल ने मुझे फिर नेकी की राह में डाला। आज जमाना जानता है हसन बसरी बाद में जमाने की इमाम और मुक्तदा बने। गुनाह हो जाता है, इंसान है, एक जात गुनाहों से महफूज है, वो अंबिया की जात है, वरना इंसान गुनाह तो हो जाता है। जैसे गुनाह फौरन तौबा कर ले, एक गुनाह हुआ दिल में एक सिया नुक्ता पड़ जाता है, फौरन तौबा कर लो तो वो नुक्ता मिट जाता है। तौबा नहीं की, दूसरा गुनाह कर लिया तो दूसरा नुक्ता पड़ता है, फिर भी तौबा नहीं की तो तीसरा नुक्ता। एक वक्त आता है ये दिल पूरा सियाही में लिपट जाता है।
ایک آنکھ کا ایک قطرہ نہیں، یہ پلکوں کے جو بال ہیں ان میں سے ایک بال کی جڑ بک گئی، کل قیامت کے دن اس کے بارے میں جہنم کا فیصلہ ہوگا تو یہ بال کھڑا ہو جائے گا، یا الہی یا تو مجھے نکال دے یا اسے جنت کا مسافر بنا دے۔ اللہ اس بال کو تو نہیں نکالے گا، اپنے بندے کو جنت کا مسافر بنا دے گا۔ بنی اسرائیل میں ایک آدمی تھا، 99 آدمیوں کو قتل کیا، 99۔ پھر اسے احساس جاگا میں نے تو بہت بڑا ظلم کیا ہے، تو وہ توبہ کے ارادے سے چلا تو راستے میں ایک راہب ملا، تو راہب سے پوچھا میں 99 آدمیوں کو مارا ہے، کیا میرے لیے کوئی توبہ کی گنجائش ہے؟ کہا 99 کوئی گنجائش نہیں۔ تو وہ سوچنے لگا چلو ایک عدد 100 کا مکمل کر لے، تو اس کو تلوار ماری، گردن دور جا کے پڑی، کہا چلو 100 کا عدد مکمل ہو گیا۔ لیکن وہ جو توبہ کی چنگاری لگی ہوئی تھی وہ بدستور جاری تھی۔ پھر آگے کو گئے تو ایک عالم دین ملے، کہا میں نے 100 آدمیوں کو قتل کیا ہے، کیا میرے لیے معافی کی کوئی گنجائش ہے؟ کہا اللہ بڑا غفور الرحیم، معاف کر دے گا، لیکن تو جس بستی میں رہتا ہے وہ برے لوگوں کی بستی ہے، یہ علاقہ چھوڑ، بغل میں ایک نیک لوگوں کی بستی ہے، وہاں جا اور ان کے ساتھ مل کر عبادت کر، اللہ تیرے گناہ معاف کر دے گا۔ وہ گیا، ابھی راستے میں ہی تھا، اس کی موت کا وقت متعین تھا، ایسا جھٹکا لگا، دھڑم سے زمین پر گرا۔ جنت کے فرشتے آئے، کہا توبہ کے ارادے سے چلا ہے، ہمارا مہمان ہے، ہم جنت میں لے جائیں گے۔ جہنم کے فرشتے آئے، کہا نہیں نہیں، 100 آدمیوں کا قاتل ہے، ہم اس کی روح کو بدبودار ٹاٹ میں لپیٹ کر سجین میں لے جائیں گے۔ کہا نہیں، یہ دونوں فرشتے لڑنے لگے تو اللہ نے تیسرا فرشتہ بطور فیصل بھیج دیا کہ جاؤ فیصلہ کرو۔ تو تیسرا فرشتہ آ کے کہنے لگا کہ زمین کو ناپو، اگر برے لوگوں کی بستی کے قریب ہے تو جہنمی ہے، نیک لوگوں کی بستی کے قریب ہے تو یہ جنتی ہے۔ جب بادیا پیمائی ہوئی، جب ناپا گیا زمین کو، تو اللہ نے نیک لوگوں کی بستی کو حکم دیا سکڑ جا، برے لوگوں کی بستی کو حکم دیا پھیل جا۔ جب ناپا گیا تو نیک لوگوں کی بستی کے قریب پایا گیا، برے لوگوں کی بستی سے دور پایا گیا۔ اللہ نے فرمایا لے آؤ، یہ تو ہمارا مہمان ہے۔ بنی اسرائیل کا آدمی 100 آدمیوں کا قاتل، جب اللہ تعالیٰ اسے معاف کر سکتا ہے، ہم تو محمد مصطفیٰ کی امتی ہے، ہم سے بھی گناہ ہوئے ہیں، میں آپ سب گناہوں میں لپڑے ہوئے ہیں۔ آج بہت خراب زمانہ ہے، طوفان بدتمیزی پھیلا ہوا ہے، سود، ننگاپن، عریانیت، قرآن کی توہین، منبر و محراب کی توہین، کوئی بدماشی گناہ نہیں ہے جو مسلمان نے چھوڑ کے رکھی ہے۔ روزانہ اخباروں میں آتا ہے فلاں کا لڑکا فلاں کی لڑکی کو لے کے بھاگ گیا۔ کیا طوفان ہے، کیا تماشا بنا کے رکھا ہے۔ ہمارے پاس سب کچھ ہے لیکن ہمارے پاس دین کی تعلیم نہیں ہے، قرآن کا وہ عشق نہیں ہے، ہمارے پاس نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زندگی ہماری زندگی میں نہیں ہے۔ تو پھر یہ سارے یہ دیکھ رہے ہو کیسے کیسے حالات ہے، میڈیا اٹھاؤ عاطفہ نامی لڑکی کا، یہ چند بچے مندر میں لے گئے، بدماش قسم کے لوگ اس کے ساتھ انہوں نے منہ کالا کیا۔ کیا ہمیں یہ دین بھی دیکھنے تھے؟ وہ تو جنت الفردوس میں چلی گئی، ہمیں سوچنا ہے کہ ہمیں یہ دین بھی دیکھنے تھے۔ الاسلام یعلو ولا یعلا، اسلام کبھی مغلوب نہیں ہوتا، اسلام ہر وقت سر بلند رہتا ہے۔ ہماری بدعمالیوں کی وجہ سے اس کی سزا دوسری کنٹری کے کتنے لوگ بھگت رہے ہیں۔ اس سے مسلمانوں یہ نہ سوچو حالات وہاں یہاں نہیں آئے ہیں، جو حالات وہاں ہیں یہاں بھی آ سکتے ہیں۔ اللہ نے ابھی ہمیں محفوظ رکھا ہے، ہم اپنے لیے بھی سلامتی کی دعا مانگے اور جہاں حالات کشیدہ ہے ان کے لیے بھی سلامتی کی دعا مانگے۔ ماہ سیام آ رہا ہے، سارے حضرات نیت کریں انشاءاللہ ہم اس ماہ نور کی قدر کریں گے، تراویح پڑھیں گے، قرآن پڑھیں گے، اور اس رمضان کے مہینے کو جتنے رمضان تمہارے گزر گئے، جتنی کوتاہیاں ہوئی ہو چکی، اب اس رمضان میں ایک بندے کی بھی ذرہ برابر کوتاہی نہیں ہونی چاہیے، تب جا کر یہ جلسہ کامیاب ہے، ورنہ وقت ضائع کرنے کے علاوہ کچھ بھی نہیں۔ نیت کرتے ہو سارے حضرات ایک مرتبہ زور سے انشاءاللہ بول دو، یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجهك المنیر لقد نفذر القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد خدا بزرگ تو یہ قصہ مختصر واخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ جی ملک بولو نہ سناؤں، تقریر تو میں نے کی، آپ تھکے ہوئے لگتے ہیں جی۔ سناؤ، جب میں بولوں اللہ کرم تو آپ بھی ساتھ میں بولیں گے اللہ کرم، بولیں گے نا؟ ساتھ دینا ورنہ بیچ میں ختم کر دوں گا۔ اور یہ تصور لے کے بیٹھے چند لمحوں کے لیے کہ ابھی ہم حرم کے اندر بیٹھے ہوئے، اللہ ہم سب کو حرمین شریفین کا دیدار نصیب فرمائے، بولو زور سے آمین۔
حاضر ہے تیرے دربار میں ہم، اللہ کرم اللہ کرم اللہ کرم اللہ کرم، حاضر ہے تیرے دربار میں ہم، اللہ کرم اللہ کرم، پھر سے اللہ کرم اللہ کرم، بہتی ہے صدا یہ چشمے نم، بہتی ہے صدا یہ چشمے نم، اللہ کرم اللہ کرم اللہ کرم اللہ کرم، جن لوگوں پہ ہے انعام تیرا، جن لوگوں پہ ہے انعام تیرا، ان لوگوں میں لکھ دے نام میرا، جن لوگوں پہ ہے انعام تیرا، جن لوگوں پہ ہے انعام تیرا، ان لوگوں میں لکھ دے نام میرا، ان لوگوں میں لکھ دے نام میرا، محشر میں میرا، محشر میں میرا رہ جائے درم، اللہ کرم اللہ کرم اللہ کرم اللہ کرم، حاضر ہے تیرے دربار میں ہم، اللہ کرم اللہ کرم اللہ کرم اللہ کرم، زور سامین کہنا، ہر سال طلب فرما مجھ کو، ہر سال طلب فرما مجھ کو، ہر سال مدینہ دکھا مجھ کو، ہر سال طلب فرما مجھ کو، ہر سال طلب فرما مجھ کو، ہر سال مدینہ دکھا مجھ کو، ہر سال مدینہ دکھا مجھ کو، ہر سال کروں ہر سال کروں میں طواف حرم، ہر سال کروں میں طواف حرم، اللہ کرم اللہ کرم اللہ کرم اللہ کرم، حاضر ہے تیرے دربار میں ہم، اللہ کرم اللہ کرم اللہ کرم اللہ کرم، میری آنے والی سب نسلیں تیرے گھر آئے تیرا در دیکھے، میری آنے والی سب نسلیں، میری آنے والی سب نسلیں تیرے گھر آئے تیرا در دیکھے، تیرے گھر آئے تیرا در دیکھے، اسباب ہو ان کو ایسے بہم، اسباب ہو ان کو ایسے بہم،
اللہ کرم اللہ کرم اللہ کرم اللہ کرم. آخری شعر بہت ہی خوبصورت. پڑھتا ہی رہو نعت مصطفیٰ کرتا ہی رہو نعت مصطفیٰ. مولا میں کرو تیری حمد و ثنا کرتا ہی رہو نعت مصطفیٰ کرتا ہی رہو نعت مصطفیٰ. مولا میں کرو تیری حمد و ثنا مولا میں کرو تیری حمد و ثنا. زندگی ہو میری زندگی ہو میری بندگی ہو تیری زندگی ہو میری بندگی ہو تیری. اللہ کرم اللہ کرم اللہ کرم اللہ کرم. حاضر ہے تیرے دربار میں ہم اللہ کرم اللہ کرم اللہ کرم اللہ کرم. بہتی ہے سدا یہ چشمے نم بہتی ہے سدا یہ چشمے نم. اللہ کرم اللہ کرم اللہ کرم اللہ کرم. ابھی کریلا گاؤں میں ایک ہی گھر سے ماں اور بیٹی دو جنازے اٹھے. ماں کا بھی انتقال ہوا بیٹی کا بھی انتقال ہوا ایک ہی گھر سے. بہت بڑا حادثہ ہے. دعا کرے اللہ تعالیٰ مرحومین کی مغفرت فرمائے کروٹ کروٹ جنت کی بہار نصیب فرمائے حسنات کو قبول فرمائے. ہم سب کو موت سے پہلے موت کی تیاری کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. درود شریف پڑھو. اللهم لك الحمد حمدا حمدا دائما كما أنت أهله وصل على محمد كما أنت أهله وافعل بنا ما أنت أهله إنك أهل التقوى وأهل المغفرة. مولا کریم ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما. یا اللہ بڑا بابرکت مہینہ آنے والا ہے. یا اللہ رحمتوں والا دین برکتوں والی رات. یا اللہ ہم سب کو ماہ سیام قرآن کے صدقے میں ہم سب کو معافی عطا فرما. یا اللہ ماہ سیام کی قدر کرنے کی توفیق نصیب فرما. یا اللہ رمضان المبارک کا ادب اور احترام ہمارے دلوں میں پیدا فرما. یا اللہ جتنے بھی ارکان یا اللہ تراویح ہے روزہ ہے نوافل ہے عبادات ہے پنجگانہ نمازیں ہے قرآن کی تلاوت ہے. یا اللہ ساری عبادتوں کو اللہ اہتمام کے ساتھ مواظبت پابندی کے ساتھ وقت کی قدر کرتے ہوئے مساجد میں یا اللہ ہم سب کو ادا کرنے کی توفیق نصیب فرما. یا اللہ جو لوگ یا اللہ تیری بارگاہ میں پہنچ چکے ہیں اس بستی میں پوری دنیا میں سے یا اللہ سب کی مغفرت فرما. اس مجمع میں جتنے لوگ بیٹھے ہوئے جس لائن سے جو پریشان حال ہے ان کی پریشانیوں کو دور فرما. جو بیمار ہے ان کو شفا کلی نصیب فرما. یا اللہ جو عورتیں پریشان حال ہے جو بیمار ہے اللہ ان کو بھی اللہ شفا عطا فرما. یا اللہ ہم سب کو موت سے پہلے موت کی تیاری کرنے کی توفیق نصیب فرما. یا اللہ کتنے لوگ گزشتہ رمضان میں دنیا میں تھے تیرے پاس پہنچ گئے. آئندہ رمضان ہمارے مقدر میں ہے بھی کہ نہیں اللہ وہ تو ہی جانتا ہے. یا اللہ اس مہینے کی قدر کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرما. جنہوں نے اس پروگرام کو منعقد کرایا یا اللہ ان کے کاروبار میں مال میں خوب برکت عطا فرما. ان کے اولاد کو اللہ حفیظ قرآن عالم دین بنا. ان کے اولاد کو ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا. یا اللہ دنیاوی امور جتنے بھی کاموں میں رکاوٹیں اللہ بنی ہوئی ہے یا اللہ ان کے لیے راہیں کھول دے. یا اللہ ہم سب کو یا اللہ آنے والی زندگی کو پچھلی زندگی کا کفارہ بنا. اطاعت کی عزت نصیب فرما. معصیت کی ذلت سے محفوظ فرما. جتنے احباب میرے ساتھ آئے ہوئے ہیں دور دراز عبدالستار بھائی چکھلی والے رفیق بھائی کریلا والے اور بہت سارے لوگ ہیں لاجپور سے کتنے لوگ آئے ہوئے ہیں یا اللہ سب کا آنا یا اللہ یہاں قبول فرما. اس مجمع کو یا اللہ بھی انتہا قبول کر لو. جو جس لائن سے پریشان حال ان کی پریشانی کو دور فرما. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.